Hi students. Now today's topic is function of management and subtopic is the importance of controlling. As you know, last time we have finished the 5 points. Another 5 points we have completed to in this lecture. So that means we will complete importance of controlling. And next lecture will be from comparative study, or you can say distinction between all function of management like planning, organizing, staffing, directing, controlling, and coordination. So that means that time this chapter is that over now. Today is the last lecture of this chapter. So remaining 5 points we are going to be covered. Up to fifth point we have discussed and we have delivered the lectures of last one. Now today is the importance of controlling. The sixth point is facilitate coordination. Now facilitate coordination means cooperation, एक दूसरे को मिलके लेके चलना. तो कंट्रोलिंग में कैसे मिलके लेके चलेंगे? कंट्रोल इज द फंक्शन इन विच द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट आर डिजाइन क्लियरली. कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे सबका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के साथ साथ उनके साथ में काम करने वाले सबऑर्डिनेट यानी जो उनके वर्किंग स्टाफ है उसको सबऑर्डिनेट करते हैं. तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? उनके साथ में काम करने लोग मैनेजर के साथ में जो उनके नीचे जो एम्प्लॉयज़ है, सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो उनके सबऑर्डिनेट हुए. सो दिस ऑल द हैव अ क्लियर roles and responsibility. If the manager is become as a manager of the any department, it is like production manager, it is like sales manager, they have some roles and responsibility. As a supervisor also have some roles and responsibility. Have a worker also have a role and responsibility. Myself also, my role is there. I am teaching to you organism of commerce. So my responsibility, I deliver the lecture and by YouTube channel I give it to you all the complete the portion on time. So every have a role and responsibility, and you are also have a role. Students also have a one must role and responsibility. That means do the study and write the homework and send the images for your attendance. So that means same way we have all the functions and have a roles responsibility of each and every department with the help of subordinate with the manager, and coordination between them help find out the division in their respective department. If any changes want, that means the manager wants some changes for improvement, for efficient work, for productivity, for improve the sales. So definitely division is there. Division means changes are there. So that time controlling is a very important function. And use the remedies. That means controlling means what? You can stop the and change the changes. With the changes you have the remedial measures. आपको उपचार उसका कैसे इलाज होगा? आज मुझे लगता है कि ये मुझे बुखार है तो मुझे दवाई चाहिए. तो दवाई आज मुझे बुखार है, ये मेरा सिम्टम है, लक्षण है, लेकिन दवाई क्या है? उसका रेमेडियल मेजर्स है. मेडिसिन क्या है? रेमेडियल मेजर्स है. वैसे डिवीजन करने के बाद उसका उपचार कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका आप क्या एक्शन लेंगे जो डिजायर रिजल्ट आने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. सो इट इज कॉल्ड फैसिलिटेट मीन्स हेल्प और कोऑर्डिनेशन. विदाउट कोऑर्डिनेशन इट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट पॉइंट is psychological pressure. Seventh point is psychological pressure. That means everybody have a standard target. I also have a standard target. I have to finish my portion on time. So for that purpose, psychological pressure are there. You also would have a psychological pressure. We will finish now my chapter is getting finished now, and I don't know the function of management of first part planning, organizing, directing, staffing. I didn't study it. So that purpose is a very important. You have a psychological. Everybody have a psychological pressure. That's why it is an important of function. Means when we are performing and then anybody will evaluate, कोई मूल्यांकन करता है और हम परफॉर्म करते हैं तो स्टैंडर्ड टारगेट को पाने के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर का दिमाग में आता ही है.
द एम्प्लॉई आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय को मालूम है कि मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, विल एवलेट, उसका मूल्यांकन होगा, दे विल रिवार्ड ऑल्सो, और अच्छा परफॉर्म होगा उस हिसाब से उसको रिवार्ड भी मिलेगा। एंड दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉय टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, और इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर से वो काम अच्छे से करता है और एम्प्लॉय को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिलता है। तो एवरीबडी हैव अ साइकोलॉजिकल प्रेशर्स व्हेन द कंट्रोलिंग इज गोइंग टू बी दैट। तो कंट्रोलिंग यही है ना, अगर आज मेरे पास साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है कि मैं पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, जान दो मैं लेक्चर नहीं लूँगा, जान दो जो होगा बच्चे लोग अपना अपना पढ़ लेंगे, तो ये इसी से क्या हुआ, तो साइकोलॉजिकल मेरे पास भी प्रेशर है कि मुझे पोर्शन टाइम पे ख़त्म करना है, मुझे टेस्ट भी आपके लेने हैं, मुझे आपको समझाना है, मुझे एक्सप्लेन करना है, मेरा पोर्शन टाइम पे होना चाहिए। तो ये एवरी दिन जब हम करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और उसका एवल्यूशन मिलता है, यस ना पोर्शन डेट ओवर ना, स्टूडेंट को समझ में आ गया, स्टूडेंट ने अपना राइटिंग वर्क स्किल देके अटेंडेंस के लिए अपना फीडबैक भी भेज दिया। सो इट इज़ ऑल इन बिटवीन डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिकल प्रेशर। Now ensure organizational efficiency and effectiveness. Next point is 8.1. Now ensure means make, अब बनाना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। तो कंट्रोलिंग क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी दोनों देता है। तो फैक्टर ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, अगर कोऑर्डिनेशन है कंट्रोलिंग है तो मैनेजर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, मोटिवेशन दिया जाएगा उसके फॉर हायर परफॉर्मेंस के लिए, अचीविंग फॉर द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट एंश्योर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एंड सिंपल सी बात है कि अगर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है तो मोटिवेशनल उसको किया जाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हायर परफॉर्मेंस वो लाए और उसको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में लाकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करे। फॉर इसके लिए कंट्रोलिंग जरूरी है, और कंट्रोलिंग में इंक्लूड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज। अब बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज को आप पॉइंट्स में गुडविल भी लिख सकते हो, एंड गुडविल इज अ वन कॉमन पॉइंट, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ कॉमन पॉइंट, वो सब में चलता है। हेडिंग लिखने के बाद उसके अंदर क्या लिखना है वो बस आपको चेंज करना है। तो गुडविल एज अ यहाँ पे बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज के बदले में आप गुडविल भी लिख सकते हैं पॉइंट्स में। तो वी कैन राइट हियर बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज, या फिर इसको आप गुडविल भी लिख सकते हो। तो गुडविल का नाम मतलब ही होता है, गुडविल मीन्स नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। तो कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प करता है इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंट्रोलिंग है तो बिजनेस के पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस तो वो क्या करता है, इफेक्टिवनेस ढंग से इम्प्रूव करता है। एंड मिनिमम कंट्रोलिंग नहीं रहेगा तो इम्प्रूव कैसे होगा, इसलिए कंट्रोलिंग चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। मिनिमम डिवीजन यानी कम से कम चेंजेस प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में रिजल्ट इनटू द प्रोड्यूस बिजनेस। अगर कम डिवीजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, अगर आपका प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल जो पहले से निर्धारित किया कि हमको ये 100 मार्कर पेन बनाना है, ये प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस है, तो एक्चुअल में आपका 80 बना, तो उसमें मिनिमम क्या चेंजेस करेंगे कि हमारा ये टारगेट 100 हो जाना चाहिए। तो इसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर वो छोटे से डिवीजन से हमारा नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्शन सही हो जाता है, 100 या 200 टारगेट पूरा हो जाता है, तो डेफिनेटली अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट का नाम ऊंचा होता है, और नाम जब बढ़ता है तो उसका गुडविल बढ़ता है। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल, और उसको करने के लिए डिवीजन को करने के लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। और द बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज ब्रिंग द गुडविल ऑफ द बिजनेस, इससे बिजनेस का गुडविल अच्छा होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्ट एज अ गाइड।
अब कंट्रोलिंग जो है वो एज अ गाइड के तरफ आपका एक्ट करता है। डेफिनेटली सी बात है, किसी भी चीज़ को चेंजेस करना है, उसका मूल्यांकन करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस को लेके चलना है, तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग जब आप करोगे तो वो एक गाइड का काम करता है, एक मार्गदर्शन का काम करता है। दैट मीन्स कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है कि अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड देन मैनेजर एज वेल एज सबऑर्डिनेट, यानी मैनेजर और सब पे काम करने वाले लोग वर्क अकॉर्डिंग टू इट, उसके हिसाब से काम करते हैं। एंड वेन एवर नेसेसरी दे कैन हेल्प दी स्टैंडर्ड दैट कैन डिजायर द रिजल्ट। और जब भी जरूरत पड़ता है तो इसमें वो कुछ चेंजेस करते हैं और वो हेल्प करते हैं कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को लेकर एक्चुअल परफॉर्मेंस में लाना चाहिए और उससे जो डिजायर रिजल्ट है वो मिलना चाहिए। कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन, इसलिए कंट्रोलिंग जो फंक्शन है वो सभी को गाइड करता है। द स्टेप्स टेकन कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटी। और ये जो कंट्रोलिंग का जो स्टेप्स है एक्ट कैसे करता है मैनेजमेंट को, जब वो प्लानिंग करते हैं फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बोर्ड का एग्जाम तो जनवरी फरवरी में, तो उसी प्लानिंग के हिसाब से हमको कंट्रोलिंग करना है। क्या कंट्रोलिंग हुआ कि एचएससी बोर्ड ने डिसाइड किया कि कॉलेजेस बंद है पर ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहा है, बट 25% पोर्शन कम कर देना है। तो ना 25% पोर्शन कम करना है, तो ये प्लानिंग करते समय कंट्रोलिंग के बारे में उन्होंने सोचा कि 100% पोर्शन देंगे। और जून में अपना कॉलेज चालू नहीं हुआ, जुलाई में लेक्चर्स, 15 जुलाई के बाद लेक्चर्स शुरू हुए, तो दैट मीन्स वो जो आपका 1 मंथ गया, तो उस 1 मंथ को प्लान करते समय उन्होंने विचार किया और इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टेट बोर्ड का 25% पोर्शन कट किया। तो इस तरह से एक कंट्रोलिंग तभी फाइनल हुआ जब प्लानिंग करते थे कि हमको कैसे पढ़ाना होगा, पोर्शन क्या होगा, कैसे एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए उसी समय एज ए गाइड के हिसाब से हुआ एचएससी बोर्ड के लिए, पोर्शन के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए। वैसे कंट्रोलिंग जो है एक्ट एज अ गाइड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को एंड एज वेल एज उसके सबऑर्डिनेट को, उसके साथ में काम करने वाले लोगों को। तो नाउ वी हैव फिनिश ऑल दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस। पेज नंबर 29 पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है, तो आप कंट्रोलिंग भी कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ आपको रीड करना है एंड वेरी आईएमपी। ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है प्लानिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही। स्टाफिंग वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग वर्सेस डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये आपके टेक्स्ट बुक में 29 एंड 30 एंड 31 पे ओवरऑल 8 पॉइंट्स दिए गए हैं और सबके सब टॉपिक के साथ में डिफरेंस भी बताया गया है। ये ओवरऑल एक रिवीजन हो जाएगा और मैं इस 8 पॉइंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये पोर्शन यानी अपना 12th स्टैंडर्ड का सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट उसी का पोर्शन खत्म हो जाएगा और डेफिनेटली फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, डू योर स्टडी एंड स्टे एट होम। और 12th का एडमिशन्स जो भी प्रॉब्लम है, मैं फिर से बोलता हूँ, मनोज परब सर का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं है तो मुझसे आप लो या फिर आपको लिंक में दिया गया उनसे कॉन्टैक्ट करो। पिछला कुछ फीस बात की उसके बारे में बात करो, नए एडमिशन के बारे में बात करो और सिक्योर एडमिशन बिफोर 3, क्योंकि एडमिशन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे एडमिशन्स होगा तो हमको डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताना होता है, बोर्ड को बताना होता है और ये ऑनलाइन प्रोसेस है। सो इन्हीं डिफिकल्टी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मनोज सर को फ़ोन करो। मनोज परब सर आपको अकाउंट के जो क्लर्क हैं वो आपको पूरा गाइडलाइन करेंगे और कुछ डिफिकल्टी होती तो आप मुझे करो, एडमिशन सिक्योर करो। अगर फीस नहीं है तब भी आप कॉलेज में कांटेक्ट करो कि फ़ीस के बारे में कैसे भरना है, क्या भरना है और कब भरना है। डेफिनेटली कॉलेज के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र, अकाउंट स्टाफ सब आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे एट होम एंड डू स्टडी।